محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ دریافت کیا گیا کہ کوئی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کرتا ہے؟ فرمایا کہ آدمی دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ منرکاپور سنگم کی رہائش گاہ کی تعمیر کے لیے اراضی و فنڈ سے مختص کرنے کی ریاستی وزیر بلدی نفس کے احتیاط سے اس سنگم کے ضلعی صدر باجیڈی جگن موہن کی جانب سے کی گئی خواہش پر مثبت رد عمل کا کیا اظہار۔ ریاستی وزیراعلیٰ KCR کی خواہش کے مطابق حسین ساگر کے کنارے شاندار پیمانے پر ڈاکٹر BR امبیڈکر مجسمے کی تعمیر عمل میں لانے کا ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے کیا اظہار۔ مہاراشٹر کی BRS پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری۔ BRS کے بانی CM KCR کی موجودگی میں مختلف قائدین نے پارٹی میں کی شمولیت اختیار۔ گزشتہ کچھ یوم سے تلنگانہ حکومت کو BRS پارٹی کے خلاف کچھ میڈیا ادارے جھوٹا پروپیگنڈا عائد کر رہے ہیں۔ سبھاش چندر شیکھر نامی شخص سے کوئی تعلق نہ ہونے کا MLC کے کویتا نے کیا اعلان۔ ریاستی حکومت کی جانب سے منعقدہ دعوت افطار میں بودھ نقطہ اسمبلی شکیل عامر و مائنارٹی کمیشن چیئرمین طارق انصاری نے کی شرکت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نوجوان اپنی تاریخ کا مطالعہ کرے اور اپنی اصلاح کے نقش قدم پر چلے، قرآن کی تعلیمات حاصل کرے اور اس پر عمل کرے۔ انکاؤنٹرز کے ذریعے صرف مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے نشانہ، انکاؤنٹرز سے جمہوریت کی اڑائی جا رہی ہیں دھجیاں۔ جلسہ یوم القرآن سے بیرسٹر اسدالدین اویسی کا خطاب۔ آج کل ہند مجلس اتحاد المسلمین صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اپنے نظام آباد کے دورے میں مسجد کچیان میں جلسہ یوم القرآن کو مخاطب کرتے ہوئے نوجوانوں کو قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی نصیحت دی، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اپنی تاریخ و اپنے اسلاف کا مطالعہ کرتے ہوئے اس پر عمل کرے۔ اسی طرح انہوں نے UP میں پیش آئے سابقہ MP کے فرزند کے انکاؤنٹر معاملے پر آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہریانہ صرف مسلمانوں کو ہی انکاؤنٹر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس طرح کے انکاؤنٹر سے کانسٹیٹیوشن و جمہوریت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر مسجد کچیان انتظامیہ کی جانب سے صدر مجلس اسدالدین اویسی و دیگر کو تہنیت پیش کی گئی۔ تیسری جماعت سے سکول میں ڈراپ آؤٹ ہوتا کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے، مگر یہ بتاؤ یہ جنید اور نصیر کو کیا BJP کی حکومت میں ہریانہ میں نہیں مارا گیا؟ کہ ہریانہ میں نہیں مارا گیا؟ کس کی حکومت ہے وہاں پر؟ کیا گھروں کو توڑ دیا نہیں جاتا بلڈوزر لگا کر؟ کیا گولیاں مار کر انکاؤنٹر نہیں کر دیا جاتا؟ بتاؤ کہ انکاؤنٹر نہیں کیا جاتا، انکاؤنٹر کر دیے تو پھر کیا جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی مارو گے؟ بتاؤ BJP والوں، جنید اور نصیر کو جس نے مارا تم اس کا بھی انکاؤنٹر کرو گے؟ نہیں کرو گے تم، اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ تم مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتے ہو۔ مارو جنید اور نصیر کے قاتلوں کو، نہیں مارو گے؟ اب تک ایک پکڑا گیا، 9 غائب، نہیں کرو گے؟ یہ قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، انکاؤنٹر نہیں، تم کانسٹیٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو۔
तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो, फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना, आसाम में लोगों को बेघर कर देना, मदरसे अजीजिया को जला देना, जुलूस निकलेगा तो इस्लाम और मुसलमान को गालियां देना, ये क्या है बताओ फिर आप? और फिर अगर यहां पर पूछो आप निजामाबाद में, अरे 16,000 किलो हल्दी का रेट था ना, वो 5,000 पे आ गया, क्या हुआ? उसको उठाओ आप। उन्होंने बोलेगा नहीं ओएसपी की वजह से हुआ, ये इनकी वजह से हुआ, इनकी। अरे तुम उसका टर्मरिक का बोर्ड कहां है, टर्मरिक का रेट कहां है? नहीं, कुछ नहीं मालूम, गाली देना, सिर्फ छिछोरेपन करना। तो बोधन में कल मुनक्किद होने वाले दावत इफ्तार का बोधन म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन सोहेल खान माइनॉरिटी, सदर एनआरआई बाबा, एएमसी चेयरमैन वीआर देसाई व दीगर ने किया मुशाहिदा। जुमा के दिन इफ्तार और ताम का अहतमाम किया गया है मस्जिद इस्माइल यार जंग शफीक चमन में, वार्ड नंबर 18 में। तमाम बोधन के आवाम से अदबन गुजारिश की जाती है कि सारे लोग शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ख़दीम मस्जिद है ये, मस्जिद इस्माइल यार जंग। हमारे एमएलए साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि एक ज़माने के बाद में ये मस्जिद के ग्राउंड को रौनक लेके आए उन्होंने। आज अल्हम्दुलिल्लाह जेसीबी ट्रैक्टर्स वगैरह भेज के बेहतरीन इंतज़ाम हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी सेहत में, उनकी कमाई में, उनके आल औलाद में बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला कल बाद नमाज मगरिब तमाम हजरात से अदबन गुजारिश की जाती है कि ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना ये इफ्तार और ताम का इंतज़ाम रखा गया है। सारे लोग आकर इस मतलब इफ्तार को बबरकत करिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएलए साहब भी इंशाअल्लाह ताला कल शिरकत करेंगे और तमाम लोगों से दुआओं के साथ शिरकत की अपील। कामारेड्डी के लिंगमपेट मंडल के जामा मस्जिद में कांग्रेस पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार पार्टी रखी गई। आईटी सेल मदन मोहन ने की शिरकत। कामारेड्डी में 13 अप्रैल जिले कामारेड्डी के लिंगमपेट मंडल के जामे मस्जिद में आईटी सेल कांग्रेस मदन मोहन की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर मदन मोहन ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी गंगा जमनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल है। माह रमजान मुबारक में हर कोई अमीर गरीब रोज़ा रखता है, इबादत करता है। इन्होंने मुसलमानों को रमज़ान की पेश की मुबारकबाद। सदर जामे मस्जिद फारूक शरीफ, गरीबुन्निसा नईम, सिद्दीक साहब, मतीन और दीगर भी मौजूद थे। खुसूसी दुआएं भी की गई। इफ्तार और ताम का भी मदन मोहन की जानिब से इंतज़ाम किया गया था। మరి దీనిలో అందరూ ఈరోజు ఇఫ్తార్ విందులో భాగంగా పాల్గొని రోజా పుణ్యదినమైన ఈరోజు రోజా విడిచి మరి అల్లాను ప్రార్థించుకొని మరి ఈరోజు భోజనాలు చేయడం జరిగింది। మరి అందరి కూడా ఈ రంజాన్ పవిత్ర దినం రోజు మరి అల్లా ఆ రోజు మన అందరికీ చెప్పింది ఒకటే, ఏదైతే పేదవాడు ఈరోజు ఆకలితోని కష్టపడుతున్నాడో దానిలో భాగంగానే ఒక నెలపాటు రంజాన్ రోజులు మన రోజా ఉండి ఆ ఆకలిని మనం అనుభవించాలని చెప్పి అల్లా। सीएम केसीआर के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासिर होकर आर्मर के मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान के अलावा कांग्रेस और बीजेपी से वाबस्ता कायदीन व ज़िला टीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर आर्मूर इरकुला संगम सदर दासरी पुलशय्यम व राकिन प्रताप अरुण शिवा और आर्मूर कार यूनियन मेम्बरान के अलावा कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ज़िले टीआरएस सदर
आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया गया। बातजा एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस सरबराह कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव के ज़ेर क़ियादत तवील और सब्र-आमोज़ जद्दोजहद के बाद रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और तेलंगाना की तश्कील के बाद पहले वज़ीर आला की हैसियत से के चंद्रशेखर राव इख्तिदार पर फायज हुए। रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से इख्तिदार संभालने के बाद रियासत में बिलालिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के अलावा बिलख़ुसूस मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर गरीबों की परेशानियों से बख़ूबी वाक़िफ़ है, इसीलिए इन्होंने गरीबों के मसाइल के यकसुई के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को मुतारफ़ किया। तेलंगाना की फलाही स्कीमात की मुल्क भर में शोहरत है, यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत भी तेलंगाना स्कीमात की तलख़ीद कर रही है। मुल्क के बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात के न सिर्फ चर्चे हैं बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात को अपनाया जा रहा है। वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए सैकड़ों फलाही स्कीमात मुतारफ़ की गई है, जिनमें रैतु बंधु, रैतु बीमा, मिशन भगीरथा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीम, आसरा पेंशन स्कीम, डबल बेडरूम मकान, ऑटो व कार के लिए माली इमदाद व दीगर का आगाज़ किया गया है। केसीआर हुकूमत में तमाम शोबेजात की तरक्की के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, चूँकि केसीआर जो खुद एक किसान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो किसानों के दुख दर्द से बेहतर तौर पर वाकिफ़ है। यही वजह है कि किसानों की माली मदद के लिए रैतु बंधु स्कीम मुतारफ़ की गई है, जिसकी सारे मुल्क में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फेंक अराज़ी पर सालाना 10,000 रुपये फराहम की जा रहे। टीआरएस हुकूमत के अमली इक़दामात के बायस किसानों के चेहरों पर खुशी और मसरत है। ज़राई शोबा बेमिसाल तरक्की की तीव्र रवा है। चावल की पैदावार में रियासत तेलंगाना में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और तेलंगाना के चावल की सारी दुनिया में काफ़ी मांग है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जाए, तो दूसरी तरफ किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए सीएम केसीआर किसानों के लिए अपनी नोयत की मुनफ़रिद स्कीम रैतु बीमा का आगाज़ किए है। रैतु बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़्फ़ी किसानों की विरसा को 5 लाख रुपये माली इमदाद दी जा रही है। बीमा का प्रीमियम भी रियासती हुकूमत की जानिब से अदा किया जा रहा है। केसीआर की फलाही स्कीमात के हर कोई मुतरादिफ है। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में पानी के मसले को ख़त्म किया गया है और ज़राई अमराज के लिए आबी सरबराही के लिए खुसूसी अज़ीम शान करोड़ों रुपये माली दी कालशम प्रोजेक्ट के खलील मुद्दत में तामीर अमल में लाई गई। तालाबों की गहराई में इजाफा के लिए मिशन काकतिया प्रोग्राम पर मौसम अमल किया गया है, जिससे आज तेलंगाना के तमाम ज़खायराब और तालाब लबरेज है। इसी तरह से ज़राई अगराज के लिए न सिर्फ पानी की मौसर सरबराही अमल में लाई जा रही है बल्कि 24 घंटे मुफ्त बरक़ें सरबराह की जा रही हैं। हर घर को नलों के जरिए पीने का साफ और शिफाफ पानी की सरबराही के लिए मिशन भगीरथा स्कीम जारी रहने का इजहार किया। म्यूनसिपल चेयरमैन के प्रेमलता सुरेंद्र के हाथों भीमगल में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। भीमगल शहर के म्यूनसिपल दफ्तर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की फराहमी अमल में लाने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर म्यूनसिपल चेयरमैन के प्रेमलता सुरेंद्र ने शिरकत करते हुए मुस्तकिल में 33 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की फराहमी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गरीब व मुतवस्सित तबके की लड़कियों की शादी ब्याह की तकरीब के लिए वालिदैन को किसी भी किस्म की परेशानी ना होने के लिए इस स्कीम को मुतारफ़ किया है। इस स्कीम के तहत हर इस्तेफादा कुनिंदगान को 1,01,16 रुपये माली इमदाद फराहम की जा रही है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान शादी तकरीब में शिरकत की थी, जिसमें माशी हालात ठीक ना होने से लड़की की शादी के उमूर की अंजामदही में लड़कियों के वालिदैन को हो रही परेशानी से मुतासर होकर सीएम केसीआर ने इस स्कीम को मुतारफ़ किया है। इसी तरह से कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब व मुतवस्सित तबके के अफराद को बड़ा सहारा साबित हो रही है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने फलाही स्कीमात के जरिए रियासत तेलंगाना में एक अजीम कारनामा अंजाम दिया है, क्योंकि रियासत तेलंगाना में अमल हो रही फलाही स्कीमात की मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। मुल्क की कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स इन फलाही स्कीमात से मुतासर होकर अपनी अपनी रियासतों में स्कीमात को मुतारफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद अवाम की तरक्की व फलाह व बहबूदी को ही तरजीह दी गई है। गरीब अवाम के लिए केसीआर का एक तोहफा है। मुल्क में किसी भी रियासत में इस तरह की स्कीम नहीं है। तेलंगाना हुकूमत के क़याम अमल में लाने के बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुनफरिद स्कीमात के तहत रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और रियासत भर में आशा पेंशन स्कीम के तहत हर माह पाबंदी के साथ ज़ईफ़ माउमरीन और अकेले ख़वातीन की इमदाद की जा रही है। और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे को अमली जामा पहनाते हुए आज 57 साल मुकम्मल करने वाले हर एक शख्स को पेंशन की फराहमी अमल में लाई जा रही है। मुल्क के वाहिद वज़ीर आला है
जिन्होंने अखलातों के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम से वाकिफ करवाया, जिसके बाइस पेशा वाराना डिग्रियों के हामिल रोजगार व तालीम के मौक़े फराहम हुए। और वज़ीर आला केसीआर ने मुसलमानों में तालीमी सुधार लाने के लिए अखलातिया ख़ामती स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस को कायम किया, जहाँ पर माहिर असातिज़ा की निगरानी में असरी व दीनी तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनंदगान ने रियासती वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर वेमुला परेशान तरीक़ा का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन शिवा साई नसैया, वार्ड काउंसलर सतेज कौर, गंगाधर, शमीम बेगम, सरवर हुसैन, पी नवीन, ZP ऑप्शन मेंबर मोइज़ व दीगर ने शिरकत की। महाराष्ट्र की BRS पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। BRS के बानी CM KCR की मौजूदगी में मुख्तलिफ कायदीन की शमूलियत इख्तियार। हैदराबाद में मुख्तलिफ सियासी कायदीन के अलावा मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ पेशावर अफराद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को BRS पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल के इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाइस की बात से मुतासर होकर मुख्तलिफ सियासी कायदीन के अलावा दीगर पेशावर अफराद BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें और आगे भी मज़ीद BRS पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी रहने का इजहार किया। तालीमी मैदान के लिए खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से हवाले किए जाने वाले ताउन से फ़ायदा उठाने का बोधन मिले शेख आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने किया इजहार। एयरपल्ली मंडल के मुकाम पर अभय फाउंडेशन तंजीम की जानिब से गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल में जायद कमरे जमात की तामीर के लिए 10 लाख रुपये अतिया हवाले किया गया। आज स्कूल में जायद कमरे की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संगे बुनियाद रखे जाने वाले प्रोग्राम से बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा व प्रिंसिपल सुहासिनी रेड्डी ने खिताब करते हुए रेजिडेंशियल स्कूल के लिए अतिया दहनगान का ताउन फ्राहम करने पर काबिल तारीफ होने का इजहार किया और इन्होंने अतिया कुनंदगान की जानिब से दिए जाने वाले अतियात को तरक्याती कामों पर खर्च करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बोधन ACP किरण कुमार, ZP नायब सदर रंजीत यादव, MPP श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। ఆయా ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఇక్కడ సైన్స్ ల్యాబ్ కోసం వాళ్ళే ముందు వచ్చి ఇది కన్స్ట్రక్షన్ కోసం కొంచెం ఫండ్ ఇచ్చినారు। దానిలో నేను కూడా ఆయిషా వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ నుంచి నేను కూడా ఏదైనా ఫండ్ ఇస్తా వచ్చినప్పుడు। అయితే ఇది కన్స్ట్రక్షన్ ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది। नवीपेट मंडल के रामपुर ग्राम पंचायत के हाथ में तेलंगाना कंटी वेलगू प्रोग्राम का मुकामी सरपंच ऋतु कल्पना, MPTC लावण्या, डॉक्टर कविता के हाथों इफ्तिताम अमल में लाया गया। CM KCR की जानिब से मुतारफ करदा कंटी वेलगू प्रोग्राम में 18 साल से ज़ायद उम्र वाले हर एक शख्स आंखों का टेस्ट करवाने की सूरत में ज़रूरतमंदों को मुफ्त चश्मा व अद्वियात की फराहमी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा मुकामी अवाम को आई कैम्प से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में सुपरिंटेंडेंट देविंदर, सोसाइटी वाइस चेयरमैन प्रवीण जी मोहन, गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। गुज़िश्ता कुछ यौम से तेलंगाना हुकूमत व BRS पार्टी के खिलाफ कुछ मीडिया इदारे झूठा प्रोपगंडा आयद करने का MLC के कविता ने किया ऐलान। BRS पार्टी की अवामी मकबूलियत KCR की कौमी सतह की सरगर्मियों का सामना न करने हिम्मत न होने के बायस तेलंगाना के मुखालिफिन मीडिया को अपने चाल में फांस कर अखबार, TV चैनल व YouTube के जरिए जानबूझकर BRS पार्टी के खिलाफ झूठा प्रोपगंडा फैला रहे। MLC कविता ने कहा कि एक माली मुजरिम एक गुमनाम खत जारी करता है तो इसके फौरी बाद BJP MLA रघुनंदन राव मरकजी इलेक्शन कमीशन को खत लिखता है। इसके बाद MP अरविंद BJP टोल गेट सोशल मीडिया पर शुबा खराब करने के प्रोग्राम को मनसूबाबंदी के साथ करने का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए जाने वाले धान खरीदारी मराकिज़ पर किसान अपनी काश्तकर्दा पैदावार को फरोख्त करने का ज़िला परिषद नायब सदर रंजीता यादव ने की ताकीद। एयरपल्ली मंडल के मुकाम पर जैतापुर सिंगल विंडो के ज़रिए निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज़ का ज़िला परिषद नायब सदर रंजीता यादव ने इफ्तिताम अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मरकज़ पर किसानों को इनकी काश्तकर्दा पैदावार को मुनासिब कीमत दी जा रही है। लिहाजा मुकामी किसान अपनी काश्तकर्दा पैदावार को धान खरीदारी सेंटर पर फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार अलोका शेखर, RI प्रभु, ఖైదీన్ ఎల్లయ్య యాదవ్ व दीगर ने शिरकत की। ప్రారంభించుకున్నాం। మరి రైతులందరూ కూడా ఎవరైతే తమ ధాన్యాన్ని ఇక్కడ ఆరబెట్టుకొని మంచి క్లీన్గా చేసి సొసైటీ పరిధిలో ఇస్తే మరి సొసైటీ రైతులందరి సహకారంతో నడుస్తూ అభివృద్ధి బాటలో ముందడుగు వేస్తుంది। కాబట్టి రైతులందరూ కూడా దళారులను నమ్మి మోసపోకుండా
ప్రభుత్వం యొక్క సొసైటీ కేంద్రాలకే ధాన్యాన్ని విక్రయించి అధిక లబ్ధి పొందాలని మరి ఇక్కడ సొసైటీ అందు మరి ఆల్రెడీ అలాట్మెంట్ వచ్చేసింది మరి గన్ని బ్యాగ్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की ख्वाहिश के मुताबिक हुसैन सागर के किनारे पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मुजस्समे का क़याम अमल में लाने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की ख्वाहिश के मुताबिक सागर के किनारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मुजस्समे का क़याम अमल में लाया गया है। इससे क़ब्ल इसके लिए तमाम तरीन एहतियाती इक़दामात अमल में लाते हुए मुजस्समे की तनसीब अमल में लाने का इजहार किया। इसी तरह से मुजस्समे के सामने अवाम को सेल्फी लेते देखने पर खुशी का इजहार। रेंजल मंडल के ताड़बिलोली देहात में बलगम फिल्म की नुमाइश की गई। रेंजल मंडल के ताड़बिलोली देहात के महालक्ष्मी मंदिर के हाथे में वाक़ ग्राम पंचायत के हुदूद में बलगम फिल्म की नुमाइश की गई, जिसमें तेलंगाना की तहजीब और रिश्तों की अहमियत के ताल्लुक से बताए जाने के वजह से अवाम जोग दर जोग शिरकत करते हुए फिल्म का मुशाहदा किया। इस प्रोग्राम में सरपंच वेलमला सुनीता नरसैया, नायब सरपंच मस्कूरी लक्ष्मी, MPTC लक्ष्मी लिंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। मुनूरकापुर संगम की रिहाइशगाह की तामीर के लिए अराजी व फंड से मुख्तस करने की रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने इस संगम के ज़िला सदर ZPTC बाजडी जगन मोहन की जानिब से की गई ख्वाहिश पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ज़िले निज़ामाबाद मुनूरकापुर संगम सदर के तौर पर मुंतखब होने के बाद पहली बार बाजडी जगन मोहन के ज़ेर निगरानी में हैदराबाद के मियारी गोल्ड होटल में रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR से मुलाकात करते हुए ज़िले निज़ामाबाद मुनूरकापुर तलबा के लिए हॉस्टल कायम करने के लिए पांगरा में वाक़ई हुकूमत की 30 गुंटा अराज़ी को संगम के लिए मुख्तस करने से मुताल्लिक़ा याददाश्त हवाले की गई और इससे मुताल्लिक़ा याददाश्त बाजडी गोवर्धन की जानिब से फराहम की गई थी, जो कि फ़िलहाल रियासती सेक्रेटेरिएट के CCL में मौजूद होने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर KTR के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद इन्होंने फौरी तौर पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए CCL कमिश्नर नवीन मित्तल से बात करते हुए मज़कूरा अराज़ी को ज़िले मुनूरकापुर संगम को देने के ताल्लुक से अहकामात जारी किए। इस मौके पर रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने खिताब करते हुए ज़िले निज़ामाबाद सदर के तौर पर मुंतखब होने के बाद पहली बार मुनूरकापुर तबके के तलबा के लिए कोशिश करने वाले बाजडी जगन मोहन को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में मुनूरकापुर गोरेला राजेंद्र व दीगर ने शिरकत की। निज़ामाबाद व कामारेड्डी ज़िले में फायर सेफ्टी वीक के मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने वॉल पोस्टर की रस्म जारी अमल में लाई। फायर सेफ्टी वीक तकारीब के मौके पर जिले कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने वॉल पोस्टर की नकाबकुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि अप्रैल की 14 तारीख से 20 तारीख तक फायर सेफ्टी वीक तकारीब मुनाकिद किए जाएंगे, जिसमें अवाम को आग के हादसा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती इक़दामात अमल में लाने के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। डिशपल्ली मंडल के धर्माराम देहात में वाक़ तिरुमला इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस कॉलेज में IMA विमेंस डॉक्टर विंग्स के ज़ेर निगरानी में आलमी यौम सेहत प्रोग्राम का कामयाब इनेक़ाद अमल में लाया गया। डिचपल्ली मंडल के धर्माराम देहात में वाक़ तिरुमला इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस कॉलेज में IMA विमेंस डॉक्टर विंग्स के ज़ेर निगरानी में मुनक़िदा आलमी यौम सेहत के मौके पर तलबा को शऊर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर बहसीत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर डॉक्टर फरीदा बेगम ने शिरकत करते हुए कहा कि हर एक के लिए सेहत व तंदुरुस्ती कीमती नेमत है, इसीलिए अपनी सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल पद्मावती तलबा ने शिरकत की। कॉलेज వరల్డ్ హెల్త్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం। ఈ కాలేజ్లో నాట్ ఓన్లీ నర్సింగ్, డెంటల్ అండ్ ఫిజియోథెరపీ అన్ని స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు। ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హెల్త్ ఈ ఇయర్ థీమ్ रियासती हुकूमत की जानिब से LB स्टेडियम में मुनक़िदा दावत इफ्तार में CM KCR ने की शिरकत। रियासती हुकूमत की जानिब से LB स्टेडियम में हर साल की तरह इस साल भी मुनक़िदा दावत इफ्तार में रियासती वज़ीर-ए-आला KCR ने शिरकत करने से क़ब्ल यतीम व नादिर बच्चों से कुछ वक्त गुजारते हुए इनकी हाल हकीकत मालूम की। बातज़दा CM KCR ने रियासत के अवाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश। इन्होंने कहा कि तेलंगाना 9 साल पहले पसमानदा था और अब तरक्की में हमारे 4 मुकाबले में मुल्क की कोई रियासत नहीं है, और कहा कि फ़ीका आमदनी के लिहाज से मुल्क नंबर 1 रियासत बनने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीरा केशवर मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, आर्मुज ज़िले सदर MLA जीवन रेड्डी, MP असदुद्दीन अवैसी, बोधन MLA शेखिल आमिर, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, आलमी बॉक्सर निखत जरीन व दीगर ने शिरकत की। एक ही बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, सब आपके सामने है। हमारे असद भाई, तमाम
कायदीन मेरे से गुजारिश किए थे कि अनीसुल गुरबा का तामीर होना चाहिए। अब तैयार हो गया बहुत ही अच्छे अंदाज में, वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा हुआ है। दूसरी बात है, टीआरएस अभी बीआरएस के हुकूमत आने से पहले यहाँ कांग्रेस पार्टी का हुकूमत था 10 साल के लिए। पूरे कांग्रेस के हुकूमत के 10 साल के दौर में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए उन्होंने खर्च किया 1180 करोड़ रुपए, यानी कि 1200 समझिए, राउंड फिगर भी है, पूरे 10 सालों में। जब से टीआरएस सरकार अब बीआरएस बन गई है, जब से बीआरएस सरकार आई है, इन 10 सालों में यानी कि 9 साल गुजर गए, 10वां साल का बजट पेश भी हुआ। कुल मिलाकर के देखें तो 12,000 करोड़ रुपए ये सरकार ने खर्च किया है। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुनरकापुर संगम की रिहाइशगाह की तामीर के लिए अराजी व फंड से मुख्तस करने की रियासती वजीर बल्दी नफ्स के एहतियात से इस संगम के जिले सदर बाजडी जगन मोहन की जानिब से की गई ख्वाहिश पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का किया इजहार। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की ख्वाहिश के मुताबिक हुसैन सागर के किनारे शानदार पैमाने पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मुजस्समे की तामीर अमल में लाने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। महाराष्ट्र की BRS पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। BRS के बानी CM KCR की मौजूदगी में मुख्तलिफ कायदीन ने पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। गुज़िश्ता कुछ यौम से तेलंगाना हुकूमत व BRS पार्टी के खिलाफ कुछ मीडिया इदारे झूठा प्रोपगंडा आयद कर रहे हैं। सुभाष चंद्र शेखर नामी शख्स से कोई ताल्लुक न होने का MLC के कविता ने किया ऐलान। रियासती हुकूमत की जानिब से मुनाकिदा दावत इफ्तार में बौद्ध नुक्ते समरी शकील आमिर व माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।